Good evening, everybody. Members and Chapter Coordination Committee of the Western India Regional Council, the Institute of Cost Accountants of India. I welcome all of you for the today's session celebrating Navratri, 9 avatars of Ma Durga. Today is the fifth session of CMA Madlasa Naidu Madam. Topic is Women's Empowerment and Legal Right. CMA Madlasa Naidu Madam is a BCom, MCom gold medalist, Masters in Philosophy, gold medalist, CMA rank holders AR 16. She is currently a practicing cost and management accountant and pursuing PhD from PT Ravi Shankar Shukla University, Raipur. She being engaged in teaching in various colleges in Raipur and Raipur chapter of the cost accountants. Also, Madam has served as a secretary of Raipur chapter of cost accountants in 2019 and 20. Now I request Madam to kindly start the session, ma'am. Thank you. Um, Good evening, everyone, respected members and coordination committee members. Thank you for giving me this opportunity to speak in this occasion of Navratri. And today I will talk about women empowerment and legal rights. As ma'am has already told you that I am currently practicing cost accounting, and I am also pursuing my PhD in commerce from Ravi Shankar Shukla University, Raipur. And I have also done courses in gender justice and women rights. So I was very much when I got opportunity for this session. So I thought this will be a great opportunity to tell about my views and my experience in women empowerment and legal rights, which I have learned in my courses. So let me share my PPT. So the topic today is women empowerment and legal rights. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, and is this visible? My PPT Visible, is visible. visible. PPT is visible, ma'am. Okay. Thank you. So what is empowerment? So empowerment is the process of gaining freedom and power to do what an individual wants or to control what happens to him or her. So basically empowerment अगर हम देखेंगे तो ये हमें ये चीज़ की फ्रीडम देता है कि हम अपने साथ में क्या करना चाहते हैं या एक्चुअल में हम किस चीज़ के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं करके. तो अगर हम women empowerment की बात करते हैं तो it refers to the process of enabling women to have greater control over their lives and able to take their own decisions. जैसे जनरली इंडिया में होता आया है अभी अब तो खैर काफ़ी बेहतर सिचुएशन है. बट वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम वो बात करें तो जब हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे तो उस समय लगभग स्टेटस बहुत बेहतर थी. अगर एंशियंट हिस्ट्री अगर हम लोग देखें मीडियल में कंपैरेटिवली थोड़ी बदतर होनी चालू गई थी. और मॉडर्न में तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम इंडिया की देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा हो गया, फर्दर प्रथा हो गया. बहुत सारी ऐसी प्रथाएं आई जो कि हम लोग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही थी उनके लाइफ में. सो अगर अभी के डेट में ऐसा है कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम बोलें तो ये सिर्फ हम लोगों को अपनी लाइफ के डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए ही नहीं, बल्कि बाकी हम लोगों को ऐसा अगर हम लोग नेशन की बात करें तो हम लोगों को इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन के लिए भी प्रमोट करती है, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी एक्टिवली ज्वाइन होने के लिए प्रपोज करती है, और हम लोगों को अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए भी जो डिसीजन है उसको हम लोगों को लेने के लिए प्रमोट करती है. तो वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें ग्रेटर एक्सेस देता है अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छे लाइफ जीने के लिए और अच्छे अपने जो डिसीजंस हैं वो सही तरीके से लेने के लिए. सो ये जो चैलेंजेस है, कुछ एक चैलेंजेस है जो कि वुमेन है उनको फेस करनी पड़ती है. जो इन जनरल जो मैंने अभी तक में देखा, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई तो मैंने एक ऐसा ये बनाया हुआ है. तो पहला जो है वो है डिस्क्रिमिनेशन का.
चैलेंज जो होता है, तो जनरली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है हमारी कंट्री में। अगर हम माँ बाप से ही चालू करें, अगर माता पिता से ही चालू करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ एजुकेशन के लिए वहाँ से ही चालू हो जाता है कि अगर मेल चाइल्ड है तो हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई इसको टेक्निकल नॉलेज के लिए हम लोग प्रमोट करें, या बाकी चीज़ें फीमेल है तो हम लोग चाहेंगे कि भाई ठीक है ये घर के आसपास में कहीं रह करके पढ़ ले। मीन्स जस्ट एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाले कंडीशन में रहती है फीमेल्स की, बस एक डिग्री पूरी हो जाए, इसकी शादी अच्छी जगह में हो जाए। तो ये बेसिकली ये जो रहता है कि हमारे जो अभी भी ये बहुत सारे जगह में ये सारी चीज़ें हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में, कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और वो चीज़ फैमिली से ही चालू होती है, सोसाइटी तो खैर बाद में आती है, बट जो फैमिली से ही हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा मैंने अभी बताया कि फैमिली में ये मेल और फीमेल साइड के लिए बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं कि मेल साइड इस वायलेंस जो होता है, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ें अभी हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि यहाँ पे या डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो गया या सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस, तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे कंट्री में बहुत अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा होता है जिसमें 2021 में नियर अबाउट 34,000 केसेस रेप के रिपोर्ट हुए थे। और ये हम सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अनरिपोर्टेड केसेस भी बहुत सारे होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं, हम लोग उसका सर्वे कर ही नहीं पाते। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे अनरिपोर्टेड केसेस भी बहुत सारे मतलब उनके हाथ से छूट जाते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा है, सिर्फ एक अलोन एक साल में नियर अबाउट 34,000 केसेस, ये एक बड़ा फिगर है अपने आप में। और जो चैलेंज नेक्स्ट जो फेस करती है वुमेन वो है पॉवर्टी का, जो कि इंडिया अभी भी मतलब कि अगर देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्री ही है। तो यहाँ पॉवर्टी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है किसी भी तरीके के डेवलपमेंट के लिए भी, मतलब हेल्थ केयर के लिए आप ले लीजिए या एजुकेशन के लिए ले लीजिए। एजुकेशन तो खैर बात की बात है, हेल्थ केयर से ही चालू करेंगे तो ये चीज़ें अभी सही नहीं है यहाँ पे, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है इनके एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट है डिस्पैरिटीज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो अभी भी जैसे हम हमारी कंट्री में अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि रूरल एरिया में आते हैं और वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, खासकर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की, जो इजीली जो हम लोगों को नहीं एक्सेस हो पाती हैं रूरल एरिया में। अर्बन तो काफ़ी खैर बेहतर होते जा रहे हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर ओन थिंग। बट हमारी तरफ से भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम लोग आते हैं लीगल राइट्स फॉर वुमेन इन इंडिया। तो हम लोग लीगल राइट्स की जब बात करते हैं ना तो हम लोग यहाँ दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक होगा लॉज रिलेटेड टू वुमेन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लॉज में क्या डिफरेंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ बात आती है कि डिफरेंस क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ ऑल द लॉज होगी, मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके अंडर में अगर हम लोगों को किसी तरीके के स्पेसिफिक लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो लॉ जो होंगे वो अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही आएंगे। मतलब कोई भी ऐसा हम लॉ नहीं बना सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एम्बिट को सुपरसीड कर जाए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन 50s में आया, ठीक है, और लॉज जो है वो बहुत पहले से बनते आ रहे हैं, बट फिर भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि ऐसे लॉज रहेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड ना कर पाए। जैसे कि अगर हम लोग लॉ की बात करें तो बेसिकली 3 लॉ हैं जो हमारे इंडियन जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। पहला है इंडियन पीनल कोड, दूसरा है CRPC दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और तीसरा है एविडेंस एक्ट। तो जो इंडियन पीनल कोड है इसकी बात करें तो ये 1860 में बना था, ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया हुआ था, जो कि आज भी वैसे ही चल रहा है। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तब यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनको सारी चीज़ों को मैनेज, क्योंकि हर प्रिंसली स्टेट का अपना एक अलग लॉ था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें सबको एक साथ हमें सब एक साथ अगर चलाना है पूरे इंडिया में, अगर हमको रूल करना है तो हम लोगों को एक ऐसा लॉ बनाना होगा जो कि पूरे इंडिया में थॉरली यूनिफॉर्मली सब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो इसलिए उन्होंने इंडियन पीनल कोड बनाया जो कि 1860 में बना और जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है, इंडियन पीनल कोड जो कि आईपीसी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो आईपीसी में क्या होता है कि आईपीसी सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्राइम्स को डिफाइन करता है और क्राइम्स के लॉ जो पनिशमेंट होंगे उसको डिफाइन करेगा। जैसे कि मर्डर हो गया,
तो मर्डर कौन से सेक्शन में आएगा, मतलब इसके जो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग क्राइम्स को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे 302 में मर्डर को डिफाइन किया गया है और 302 के बाद में उसके सब सेक्शन में उसके पनिशमेंट को बताया गया। तो ये हो गया इंडियन पीनल कोड। और ये जो सीआरपीसी होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें ये बताया जाता है कि क्राइम तो एक्चुअल में हो गया और पनिशमेंट आईपीसी में, बट उसको एक्चुअल में प्रोसीड कैसे करना है, कि आपको कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए किस तरीके से ऑफिसर के पास, कौन से जो पुलिस ऑफिसर होगा कौन से रैंक का होना चाहिए, कि वहाँ पे आप जाके उनको किस तरीके से रिटर्न में एप्लीकेशन दोगे तो वो एफआईआर होगी, आपको उसकी कॉपी मिलेगी। ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में है। और एविडेंस एक्ट यानी कि आपको जो सबूत है उसको किस तरीके से आपको कोर्ट में पेश करना है, वो एविडेंस एक्ट में बताया गया है। उसके बाद में ये 3 चीज़ मेन है। और उसके बाद में फिर स्पेशल लॉज होते हैं जो कि स्पेशली कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए बनाए गए हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वुमेन के लिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ है, जो कि आईपीसी में पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस हैं जो कि वुमेन के रिलेटेड हैं वो हैं, और अदर स्पेशल लॉज जो हैं हम लोगों को वो देखना है। तो पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिफरेंट टाइप के जो राइट्स हैं, जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो बताई गई हैं, उसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। और आर्टिकल 15(1) से चालू होता है वुमेन के लिए। तो आर्टिकल 15(1) जो है वो ये बोलता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। यानी कि मेल और फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 15(3), ये कहता है कि स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड इवन फेवरिंग देम। तो एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो कर सकते हैं, आर्टिकल 15(3) होता है। एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप फेवर कर रहे हैं वुमेन को, और वो पॉजिटिव वे में अगर आप फेवर कर रहे हो। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लें कि जैसे एक स्पेशल एक्ट बनाया गया 2005 में, डोमेस्टिक वाले जो एक्ट है, वो जो एक्ट है वो स्पेशली वुमेन के लिए बनाया गया। इस एक्ट में सिर्फ वुमेन जो है वो वही मतलब कि वही एज अ विक्टिम उस एक्ट को यूज कर सकती है। तो ये फेवर में था, बट ये एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये आर्टिकल इस बारे में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16(2). सो ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर फॉर एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 23(1), जो कि बोलता है कि ह्यूमन बींग्स ऑफ फोर्स लेबर है, जो ट्रैफिकिंग होती है वो प्रोहिबिटेड है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 23(1). और आर्टिकल 39(a) जो है ये सिक्योर करता है कि सेम जो है इक्वल राइट होना चाहिए मेल और फीमेल को अपने लाइवलीहुड के लिए। और आर्टिकल 39(d) इंश्योर करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39(e), जो ये इंश्योर करता है कि वुमेन वर्कर्स शुड नॉट बी फोर्स्ड टू डू वर्क above their strength and have healthy work environment. आर्टिकल 42 ये बोलता है कि हमें जो वर्किंग कंडीशंस जो रहती हैं फीमेल्स की, वो ह्यूमन और जस्ट होनी चाहिए। और खासकर तब जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मैटरनिटी जो भी चीज़ें होती हैं, पोस्ट मैटरनिटी जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको वर्किंग कंडीशंस अच्छी देनी चाहिए। आर्टिकल 51(a)(e) ये बोलता है कि हर सिटीजन इंडिया का उसको ये करना चाहिए कि वो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ें ना बोले या सपोर्ट ना करे। आर्टिकल 243(d)(3) ये बोलता है कि D3+4 ये बोलता है कि 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स एवरी पंचायत में वो वुमेन के लिए रिजर्व होने चाहिए। और इवन ऑफिस में भी जो पंचायत लेवल की जो ऑफिस होगी, पंचायत ऑफिस जो होती है, उसमें भी कम से कम 1/3 जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए। और सेम यही चीज़ आर्टिकल 243(d)(3) में बोला गया है कि म्यूनिसपैलिटी में भी एटलीस्ट 1/3 जो है वो जो डायरेक्ट इलेक्शन से जो कैंडिडेट्स आएंगे वो एटलीस्ट 1/3 फीमेल होने चाहिए। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं। बट अब बात आती है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर कवर हो ही जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर हम लोग को अलग से इंडियन पिनल कोड में सारी चीज़ें बोलने की या बताने की, या इंडियन पिनल कोड के बाद में भी हम लोगों को स्पेशल लॉज बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा है।
तो बात ये है कि यहाँ बात क्राइम की ग्रेविटी की हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्राइम किसी भी चीज़ का बताया नहीं गया है एक्चुअल में, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके अधिकार और आपके कर्तव्य बताए गए हैं। बट जब आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में आपको क्राइम्स को तो डिफाइन किया गया है, बट ग्रेविटी नहीं बताया गया है आपको। ग्रेविटी जो है स्पेशल जो लॉज है उसी में बताई गई है। जैसे अगर हम लोग इंडियन पिनल कोड की बात करें तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी ये बोलता है, ये जो सेक्शन है ये रेप के लिए है, तो इसमें बोला गया है कि आपको मिनिमम जो है 7 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट होगी अगर कोई रेप पर कोई क्रिमिनल है जो ऑफेंडर है उसे, और वो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ टाइम के लिए, और उसमें उसे फाइन भी देना होगा। वैसे अगर हम लोग सेक्शन 363 से 373 देखें तो इसमें किडनैपिंग एंड अब्डक्शन होता है डिफरेंट पर्पसेस में, जिसमें हो सकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो, ऑर्गन जो है ट्रैफिकिंग के लिए हो, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट बोला गया है कि आपको कम से कम 10 साल के लिए होगा, और इसमें भी फाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि डाउरी डेथ्स के लिए है, तो ये डाउरी डेथ के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मर्डर के लिए सेक्शन 302 लगता है आईपीसी का, और यहाँ होमिसाइड अगर स्पेशली डाउरी के लिए अगर डेथ हुआ है तो उसमें जो पनिशमेंट होगी वो अलग हुई है। जैसे कि इसमें बोला गया कि आपको कम से कम 7 साल की सज़ा होगी, और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए एक्सटेंड हो सकता है पर्टिकुलर केसेस में जहाँ पे ज़्यादा ब्रुटैलिटी हो या ज़्यादा क्रुएलिटी हो, ये जजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन 498 ए आईपीसी की, जो कि टॉर्चर होता है बोथ मेंटल एंड फिजिकल। तो इसमें बोला गया कि आपको कम से कम 3 साल की सज़ा होगी और आपको फाइन भी देना होगा। नेक्स्ट है 354 सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, दैट इज मोलेस्टेशन, जिसमें कम से कम 5 साल की सज़ा और फाइन बोला गया। यहाँ पे अब आईपीसी के सेक्शन 509 है, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है। इसमें बोला गया कि आपको कम से कम 3 साल की सज़ा और फाइन देना होगा। अब बात ये आती है कि अगर आईपीसी में आप देखेंगे तो आईपीसी में आप देखिए कि आपको ये जो डाउरी है उसके लिए भी कानून आपको सेक्शंस हैं। उसके बाद में आपको मेंटल और फिजिकल टॉर्चर हो रहा है उसके लिए भी आपके पास में सेक्शन है, आपके पास में पनिशमेंट है मोलेस्टेशन के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। बट स्टिल हम लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भाई हम लोगों को स्पेशल लॉज चाहिए, तो ये स्पेशल लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने पहले बताया कि जो ग्रेविटी है क्राइम की उसको डिफाइन नहीं करता है आईपीसी, और आईपीसी में एक और जो चीज़ है वो ये है कि आप सिर्फ ऑफेंडर के लिए आपने पनिशमेंट बताई है, आपने जो विक्टिम है आप उसके रिलीफ के लिए क्या करते हो, ये सारी चीज़ें आईपीसी में नहीं बताई गई। तो इसके लिए स्पेशल लॉज जब टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट हुआ और स्पेशल लॉज है उसमें अभी हम लोग जैसे पहले देखते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 में आया था, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि 302 में भी डाउरी डेथ जो होमिसाइड है, अगर डाउरी की वजह से किसी की डेथ होती है तो उसमें भी इम्प्रिजनमेंट है। बट अगर कोई स्पेशल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अपार्ट, अच्छा एक चीज़ और है कि आप जब भी हम लोग जैसे एफआईआर होता है तो जो पुलिस जो कर्मी होते हैं तो उन लोगों के पास में ऑप्शंस होते हैं कि भाई आप सिर्फ आईपीसी की धाराएं वो लगाते हैं, तो उनकी चॉइस होती है कि वो कौन सी धाराएं लगा रहे हैं, कि ये सिर्फ आईपीसी लगा रहे हैं या कोई स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग भी मतलब कि धाराएं लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके तरफ से होती है। इसलिए हम लोगों को लीगली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हम जब एफआईआर होती है जो भी चीज़ होती है तो उन्होंने कौन से सेक्शंस लगाए हैं, हम लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो अगर कुछ स्पेशल लॉ है तो हम उसका बेनिफिट ले सकें। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, जिसमें कि डाउरी के लिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि जैसे शादी हो जाती है और अगर 7 साल हो गए हैं शादी के, तो 7 साल के बाद में कोई भी फीमेल जो है वो डाउरी के ये जो एक्ट है उसका यूज़ करके अपने हस्बैंड को डाउरी के लिए नहीं बोल सकती कि इन्होंने मुझसे डाउरी मांगा था, क्योंकि 7 साल का एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें ये बात बोला जाता है कि अगर आपको आपके लॉज की तरफ से अगर प्रॉब्लम लगती है कि डाउरी की है तो आप इस एक्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट 7 साल के बाद में ये एक्ट का यूज़ फीमेल नहीं कर सकती है। तो इसमें ये पनिशमेंट दिया गया कि आपको कम से कम 6 महीने की और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा होगी, और एक फ़ाइन बोला गया कि आपको मिनिमम 15,000 या वो अमाउंट डाउरी का जो आपने मांगा है विच एवर इज़ हायर वो आपको एज अ पनिशमेंट आपको एज अ फ़ाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सीडर एक्ट। ये एक्ट एक्चुअल में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए बनाया गया था। एक्चुअल में इंडिया में ये जो है प्रोस्टिट्यूशन ये लीगल नहीं, बट कोई प्राइवेटली ट्रेड करता है तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप पब्लिक प्लेस से एटलीस्ट 200 यार्ड्स की दूरी पे करें,
और जो नॉर्मल जो वर्कर्स होती है, फीमेल वर्कर्स जैसे फैक्ट्री में या जो भी हैं, तो उनके ऊपर जैसे जो भी वेजेस एक्ट वगैरह जो लागू होते हैं वो इन वर्कर्स के ऊपर में लागू नहीं होते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि इनको राइट टू रेस्क्यू रहता है और ये रिहैब की फैसिलिटी के लिए जा सकती हैं अगर ये चाहती हैं, तो गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये जो एक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम लोग देखेंगे तो आईपीसी में भी इस बारे में एक्ट है, मतलब सॉरी सेक्शन है। बट फिर भी से हम लोगों को इसके लिए ज़रूरत जो है ये स्पेशल लॉज की इसलिए पड़ती है कि हमको रिलीफ क्या मिल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम लोगों को ये बोला गया कि अच्छा, हम लोगों को यही लगता है कि अगर कोई फीमेल है तो उसके साथ में अगर फिजिकल, और आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा देखा जाए तो मेंटल टॉर्चर को लोग बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ समझते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक चीज़ और को इंक्लूड किया गया कि जो हस्बैंड है या मेल पार्टनर है फीमेल का, वो या उसके कोई भी रिलेटिव जो उस घर में है फीमेल के साथ में, वो मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, मतलब इकोनॉमिकली भी, किसी भी तरीके से, जैसे उसको पैसे की ज़रूरत है या कुछ है, अगर वो उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं जानबूझ के और उसको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली इस चीज़ के लिए कि भाई आपको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे या आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल, तो इस चीज़ को भी डोमेस्टिक वायलेंस ही माना गया। तो ये चीज़ भी है जो कि यहाँ, जैसे मैंने पहले बताया, किसी में इतनी क्लियर चीज़ें नहीं बोली गई थी, लेकिन जब ये एक्ट आया तो इसमें इस चीज़ को भी इंक्लूड किया गया कि फाइनेंशियली भी अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर ये चीज़ भी आपके इसमें आएगी कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है करके। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें शेल्टर का प्रोविजन दिया गया कि अगर कोई महिला है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है और अगर इस एक्ट के थ्रू वो रिलीफ लेना चाहती है, तो जो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं हर स्टेट में, तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में जाके ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, इवन पुलिस के इन्वॉल्व होती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये ड्यूटी होता है कि अगर वो उसी घर में रहना चाहे जहाँ उसके इनलॉज हैं या मेल पार्टनर जहाँ वो रहती है, तो वो वहाँ पे उससे शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। अलग से अगर वो अलग रहना चाहती है तो एक रूम या जैसा भी हो पाएगा, और इवन अगर वो अलग कुक करना चाहती है, उसके अगर बेबीज हैं, तो अगर वो उसकी कस्टडी इंटीम तरीके से अगर रखना चाहती है तो वो रख सकती है, जब तक ये सारा मामला सुलझ नहीं जाता है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस इवन जो चाहिए, वो भी उसके इन लॉज या फिर उसके हस्बैंड को बियर करना पड़ेगा। इवन ये है कि ये रिलीफ भी देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है ये पॉश एक्ट, जिसको हम लोग द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बोला गया। इसको पॉश एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि 2013 में आया हुआ था। इस एक्ट में जितने भी ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटीज़, जो जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ फीमेल काम कर रही हैं और जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो लायबल है एक सेफ और सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फीमेल को प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पे की प्रोविजंस ये थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अपने नोटिस बोर्ड पे ये लगाना होगा कि हमारे यहाँ ये प्रोटेक्शन फीमेल एम्प्लॉयज़ को सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हर एम्प्लॉयर जो है जहाँ पे ये अप्लाई होगा ये रूल, तो वहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी जिसमें से कि कम से कम जो उसके मेंबर्स होंगे, हाफ कम से कम वो फीमेल होंगे, और जो उसकी हेड होगी वो भी एक फीमेल होगी। जहाँ जाके जो फीमेल वर्कर्स हैं, अगर उनके साथ में ऐसा कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकती हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना होगा कि जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या उनको अगर और भी कोई असिस्टेंस चाहिए, जैसे कि उनको ट्रांसफ़र चाहिए या कुछ और अरेंजमेंट चाहिए, तो ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है कि वो ये सारी चीज़ों को अरेंज करे। नेक्स्ट जो है फैमिलीज कोर्ट एक्ट है 1954 का। तो इस जो यहाँ पे एक चीज़ और इन जनरल डिस्कशन है कि जो इंडिया का सबसे जो हायर जुडिशरी जो फोरम है बुलंद है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके अंडर में आते हैं स्टेट वाइज जो भी हाई कोर्ट्स होते हैं वो हैं। तो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। दो स्टेट के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का है, उनका चंडीगढ़ है दोनों का। तो वो हाफ ऑफ टाइम में डिवाइड करके वो लोग वहाँ होता है। और उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बोलते हैं, और उसके जस्ट पैरेलल में एक और कोर्ट चलता है जिसे हम फैमिली कोर्ट कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, और फैमिली कोर्ट भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगी।
तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहाँ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स चलते हैं, मतलब जो भी केसेस होंगे वो या तो क्रिमिनल नेचर के होंगे, जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, और जो सिविल केसेस जैसे कि लैंड के केसेस हो गए या कुछ इस तरीके के केसेस हो गए, तो वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चलता है। और फैमिली कोर्ट में ऐसे केसेस चलते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं फैमिली के, जैसे कि डाइवोर्स हो गया या मेंटेनेंस के लिए हो गया या फिर बच्चों की कस्टडी के हो गया, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ये अलग नेचर के होते हैं, तो उनके लिए एक अलग से एक फोरम बनाया गया जिसको फैमिली कोर्ट बोला गया। और ये यहाँ पे जो आउट ऑफ द वे जाके सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाती है जो यहाँ के जो भी मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके द्वारा, कि ज़्यादा मतलब बच्चों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब होती है जैसे डाइवोर्स होता है या मेंटेनेंस वगैरह जो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, तो बच्चे ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सेटलमेंट ये यहाँ अपने तरीके से कराते हैं। और अगर इनका जो भी ऑर्डर आता है और इसके अगेंस्ट अगर किसी को जाना है, कोई भी अगेंस्ट पार्टी में से किसी को भी, तो उनको सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको सीधे हाई कोर्ट में जाना होगा, जो भी स्टेट का होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है तो फैमिली कोर्ट एक्ट में, कि आपका एक और सेक्शन होता है, सेक्शन 125 होता है। तो ये जो 125 होता है ये मेंटेनेंस के लिए होता है, कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग रहना है तो वाइफ को अगर मेंटेनेंस चाहिए अपने हस्बैंड से, तो वो भी जो है वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लगता है, फिर वो क्योंकि वो फैमिली मैटर हो जाती है, वो यहाँ फैमिली कोर्ट में इस सेक्शन को हम लोग डील करते हैं। अगर 125 के अंडर में हम लोगों को लगाना है अगर, तो यहाँ फैमिली कोर्ट में भी लगेगा। नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें जो भी ये एक्ट जो 1954 में आया हुआ था, और इसमें सारे इंडिया के लोग और इंडियन नेशनल्स इवन जो फॉरेन कंट्री में हैं वो सारे कवर होते हैं। और इस मैरिज एक्ट में ये बोला गया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और फेथ, दोनों में से मेल या फीमेल में से, ये रिलीजन या फेथ को फॉलो नहीं करते हुए ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसे हम इन जनरल कोर्ट मैरिज भी बोलते हैं। इसमें कोई भी दो लोग जो इंडिविजुअल हैं वो अपने रिलीजन या कास्ट या फेथ को छोड़ के इस मैरिज एक्ट के थ्रू अगर रजिस्टर्ड होते हैं, तो इसी मैरिज एक्ट के थ्रू ही उनका जो मैरिज है वो पूरी तरीके से गवर्न होगा। इवन अगर आगे जाकर उनको अपनी मैरिज डिसॉल्व करनी है, अपनी मैरिज अगर उनको डिवोर्स लेना है, तो इसी एक्ट के थ्रू ही उनको सारी प्रोसेस जो है वो करनी होगी। जैसे कि अगर इंडिविजुअल अगर दो हिंदू हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में गवर्न होंगे, वैसे अगर कोई अगर मुस्लिम्स है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट उसके अंडर में कवर होंगे। बट अगर मान लीजिए कोई दो इंडिविजुअल हैं वो अलग रिलीजन के हैं, फेथ के हैं या इवन कास्ट के हैं, तो अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर वो जाते हैं शादी रजिस्टर करते हैं, तो उनको आगे की जो भी प्रोसीजर होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में ही करनी होगी। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ये एक्चुअली पहले भी एक बार अमेंड हो चुका है 95 में। और इसका एम बस ये एक्चुअल में ये एम करता है कि जो पेड मैटरनिटी लीव है वो कितनी मिलनी चाहिए। तो पहले था ये करीब 12 वीक के लिए था 95 में जब अमेंड हुआ था, तो ये 61 या 61 में आया हुआ था। उसका 95 में अमेंड होकर ये 12 वीक्स हुआ, और ये 2017 में होकर अब ये 26 वीक्स हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो वो मैटरनिटी लीव में जा सकती है 26 वीक के लिए, टोटल मिला के 26 वीक्स के लिए अपने पहले दो बच्चों के लिए। और अगर तीसरे बच्चे के लिए उनको चाहिए तो वो सीधा जो एंटाइटलमेंट है वो रिड्यूस होकर 12 वीक के लिए हो जाता है। अच्छा, अब ये बात आती है कि 26 वीक जो है वो आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें से आपका जो प्री डिलीवरी पीरियड है वो कम से कम आप 8 हफ्ते के लिए ले सकते हैं, और उसके बाद में डिलीवरी पीरियड के बाद में आप बाकी के जो बचे 18 हफ्ते हैं आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद में जो भी जैसे कि जो भी बेनिफिट होती हैं, जैसे कि ब्रेचेस वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो सारी एम्प्लॉयर को देनी होंगी यहाँ पे, अगर 50 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हैं तब के केस में। और यहाँ पे जो मदर है उसको अलाउ किया जाएगा कि वो 4 टाइम्स विजिट कर सके अपने बच्चे को डेली उस ब्रेचेस में। और ये सारे जो कॉस्ट हैं वो एम्प्लॉयर्स ही एक्चुअल में बेयर करेंगे। तो यहाँ पे और ये पेड मैटरनिटी लीव होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कई महिलाएं होती हैं, कई वुमेन हैं जो अडॉप्ट करती हैं, तो अगर उन्होंने 3 महीने से कम के बच्चे को अडॉप्ट किया है तो उनको भी वो भी एंटाइटल है 12 हफ्ते के मैटरनिटी लीव के लिए। लेकिन अगर 3 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उनको ये एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगी।
ऐसी कमीशन जो मदर्स होती है, कमीशन मदर यानी कि जो SSLBC वाले केसेस जो होते हैं, इवन उसमें भी 12 वीक के उनको मैटरनिटी लीव के लिए प्रोविजन है इस एक्ट में। नेक्स्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसमें ये बोला गया, ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया था क्योंकि मतलब इलीगल जो एबॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और खासकर फीमेल फिटस जो फिटस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इश्यूज थे। तो इसलिए ये एक्ट लेके आया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसमें ये बोला गया कि अगर 12 वीक से अंदर की अगर प्रेगनेंसी है तो आप इसमें सिंगल डॉक्टर के ओपिनियन से आप टर्मिनेट करवा सकते हैं। बट अगर 12 वीक से ऊपर हो जाता है और 21 वीक से कम है तो इसके लिए आपको कम से कम 2 डॉक्टर की ओपिनियन लगेगी कि आपको ये टर्मिनेट करवाना चाहिए या नहीं। अच्छा, इसमें कुछ एक क्वालिफिकेशंस इसके जो क्वालिफाई करती हैं जो टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी के लिए, कि किन महिलाओं को इस एक्ट के थ्रू बोला जाता है कि ठीक है आप टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये इलीगल है। बट अगर लीगल वे में जाना चाहें तो इस एक्ट के थ्रू जा सकते हैं कि ऐसी महिलाएं जो कि फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रेगनेंसी की वजह से जिनकी खराब हो सकती है वो टर्मिनेट करवा सकती हैं, या ऐसे वुमेन जिनको सोनोग्राफी वगैरह जो आजकल होती है उसमें अगर ये पता चला कि जो बेबी है वो अगर पोटेंशियली हैंडीकैप या नॉर्मल हो सकता है तो उस केस में भी ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है। अगर डेट की वजह से प्रेगनेंसी है तो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी अगर अनमैरिड गर्ल की है जो कि 18 ईयर्स के नीचे है तो उसके गार्जियन के कंसेंट से टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर कोई मेंटली अनस्टेबल है उसके गार्जियन के कंसेंट से भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। और अगर जो स्टेरिलाइजेशन हुआ था और अगर उसमें फेलियर हो गया है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी है तो तभी ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट में ये बोला गया कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल वर्क इक्वल पे वाली जो बात हम लोगों ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन में की होगी, ये एक्ट उसी को अच्छे तरीके से विद मोर क्लैरिटी ये डिस्क्राइब करता है। और अभी रिसेंट अगर हम लोग बात करें तो अभी 19 सितंबर 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया हुआ है, और इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन को मोर एक्टिव पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने और पॉलिसी मेकिंग में उनका ज़्यादा योगदान रहे ताकि वुमेन एम्पावरमेंट और अच्छी तरीके से हो सके। और इसके लिए इन्होंने बोला था कि फ्रेश लेजिस्लेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड एटलीस्ट 1/3 of total seats in the House of People, the Legislative Assembly for every state and Legislative Assembly of the National Capital Territory of India to be reserved for women, यानी कि 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखा जाएगा, ये बोला गया वुमेन रिजर्वेशन बिल में। सो हम लोगों को इतने सारे हमारे पास में लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और स्पेशल लॉज बने हुए हैं। इतनी सारी हम लोगों के पास में चीज़ें हैं जो हम लोग को पता है, बट फिर भी हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी ही चीज़ों को अच्छे से क्या बोलना चाहिए, अब अच्छे से हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। हमको पता है हमारे राइट्स क्या हैं बट हम लोग अच्छे तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते। कितने गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इवन विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो बहुत सारे इवन एनजीओज भी हैं जो बहुत काम करते हैं। बट हम लोगों को पता है कि हमारे पास में बहुत सारे राइट्स हैं बट हम लोग सही तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अवेयर होने के बाद में भी कई चीज़ों को हम लोग ड्यू टू नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस हम लोग कई बार उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। तो ये चीज़, इन सारी चीज़ों की वजह से ही ऐसा है कि हमारे पास में इतने सारे राइट्स होते हुए भी हम लोग उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनका हम लोग बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं अपने अवेयरनेस ना होने की वजह से, और कई बार अवेयर होते हैं तो हमारे इग्नोरेंट होने की वजह से। तो एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो लीगल, ठीक है, लीगल तरीके से हमारे पास में बहुत सारे प्रोविज़न है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन भी और एज पर लॉ भी। बट इसके अपार्ट में भी अगर हम देखें तो अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, और अवेयर होने के बाद में अपने हक के लिए लड़ना और अपने लिए बोलना बहुत बड़ी चीज़ है। सो दिस वॉज द थिंग I had prepared. So anyone has any query?
Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'm PPT. completed, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Then shall we conclude या फिर any question and answer, ma'am? Uh, Ma'am, I had asked, but one is having a query, I think. Okay. Okay. Thank you very much, ma'am, for the wonderful session, ma'am. Then we will conclude the session. Okay, ma'am? Thank you.